السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کھڑے ہو جاؤ، خاموشی میں ایک سرگوشی سی سنو۔ ایک دن ایسے آئے گا جب تمہاری آنکھ کھلے گی اور دنیا کا نقشہ بدل چکا ہوگا۔ وہی دنیا جسے ہم سچ سمجھ بیٹھے تھے جھوٹ کے پردوں میں لپٹی ہوگی، روشنی اپنی جگہ چھوڑ دے گی اور ہر طرف گہرا سا اندھیرا پھیل جائے گا۔ اور اسی اندھیرے میں ایک ایسی ہستی نمودار ہوگی، حسن و جاذبیت کی چادر اوڑھے مگر اندر سے زہر گھولنے والی۔ ایسی چالیں چلتی ہوں گی کہ سادہ دل آدمی بھی اپنے رب کو بھول جانے پر مجبور ہو جائے۔ کیا تمہارے رونگٹے کھڑے نہیں ہو رہے؟ دل تھمسا گیا؟ ٹھیک ہے، یہی وہ گھڑی ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا، جس کی خبر اہل بیت نے دی اور جسے احادیث نے صدیوں تک ہمارے اندر زندہ رکھا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، نہ محض قصہ کہانیاں، یہ وہ وعدہ ہے جو حقیقت بن کر آئے گا۔ اس مارکے میں ایک طرف ہوگا وہ عظیم فتنہ دجال، فریب کا سربراہ، دھوکے کا شہنشاہ، اور دوسری طرف ہوگا حق کا دوہرا نور، امام مہدی کی قیادت اور حضرت عیسیٰ کی رحمت۔ یہ بات تمہارے دل کو جھنجھوڑ دینے کے لیے نہیں کہ ہم ڈرا سکیں، بلکہ تاکہ تمہارے اندر ایک آواز اٹھے۔ سوچو، جاگو اور فیصلہ کرو، تم کس لشکر میں کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ بیٹھو، کان کھولو، کیونکہ آگے آنے والا ہر لفظ تمہارے ایمان کو ایک آئینہ دکھائے گا۔ دجال، فریب کا بادشاہ۔ ناظرین، کبھی سوچا ہے کہ دجال کا نام سنتے ہی دل کیوں لرز اٹھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کوئی عام دشمن نہیں، بلکہ وہ فتنہ ہے جو انسان کے ایمان کو جڑ سے ہلا دینے کے لیے آئے گا۔ اہل بیت کی روایات میں آیا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، مگر یہ نشان ہر کسی کو دکھائی نہیں دے گا، صرف وہی دیکھ پائیں گے جن کے دل ایمان کے نور سے منور ہوں گے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا وجود جو بظاہر انسانوں جیسا لگے مگر اس کی رگوں میں زہر دوڑ رہا ہو، ایک ایسا وجود جو اپنی شیطانی طاقتوں سے پوری دنیا کو اپنے جال میں لپیٹنے کی کوشش کرے گا۔ دجال اپنی فریب کاریوں سے زمین کے خزانے نکلوائے گا، آسمان سے بارش برسا دے گا اور بھوکوں کو کھانے کا دھوکہ دے گا۔ وہ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے گا کہ وہی ان کا خدا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ محض ایک جھوٹا، ایک مکار، ایک ایسا دھوکے باز ہوگا جس کا مقصد صرف کمزور ایمان والوں کو بہکانا ہوگا۔ ناظرین، آئیے اب اس سوال کی گہرائی میں چلتے ہیں کہ دجال کہاں سے نکلے گا۔ اہل بیت کی روایات ہمیں اس راز سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ کچھ احادیث میں ہے کہ دجال کا ظہور اصفہان کے ایک یہودی محلے سے ہوگا، وہ جگہ جو ہمیشہ فتنوں کی آماجگاہ رہی، جہاں لالچ اور سازشوں کے بیج بوئے جاتے رہے، جبکہ بعض روایات یہ اشارہ دیتی ہیں کہ وہ شام کے قریب سے نمودار ہوگا، وہی خطہ جہاں تاریخ کے بڑے بڑے مارکے برپا ہوئے، جہاں انبیاء نے اپنی امتوں کو جھنجھوڑا اور جہاں سے روشنی بھی اٹھی اور اندھیرا بھی۔ لیکن ناظرین، مقام چاہے کوئی بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ دجال کے گرد وہی قوتیں ہوں گی جو صدیوں سے انسانیت کو بہکاتی آئیں، وہ لوگ جو دولت کے پجاری ہیں، جو طاقت کے نشے میں اندھے ہیں اور جو ہمیشہ حق کے مقابل کھڑے رہے ہیں۔ اب سوال ہے، یہ سب کب ہوگا؟ اہل بیت فرماتے ہیں، جب زمین پر ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، طاقتور کمزوروں کو کچل ڈالیں گے، انصاف اور عدل کا چراغ بجھتا دکھائی دے گا اور انسان سچائی سے منہ موڑ کر دنیا کے فریب میں ڈوب جائیں گے۔ تو پھر وہ لمحہ آئے گا جب دجال اپنی شیطانی چمک کے ساتھ دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا۔ سوچو ناظرین، وہ وقت جب ہر طرف اندھیرا ہوگا، امید کا دیا بجھتا محسوس ہوگا اور اچانک ایک فتنہ ابھرے گا جو اپنے جھوٹے کرشموں سے لوگوں کو اپنی خدائی کا یقین دلائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، یہی وہ وقت ہوگا جب امتحان شروع ہوگا۔ کچھ آنکھیں اس فریب کو سچ مان لیں گی اور کچھ دل ایمان کی روشنی سے پہچان لیں گے کہ یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔
क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके बाद वजाहत करूं कि दज्जाल किस तरह अपने करश्मों और झूठे मौजिज़ात से दुनिया को वर्गलाएगा? इमाम मेहदी का ज़ुहूर, अंधेरों में रोशनी। मगर याद रखिए, अल्लाह अपनी जमीन को कभी तारीकियों के हवाले नहीं करता। ऐसे दिनों में वो अपनी सबसे बड़ी हुज्जत को जाहिर करेगा। जी हाँ, इमाम मेहदी को। इमाम मेहदी वो हस्ती हैं जिन्हें अहले बीत ने जमीन पर अदल कायम करने वाला कहा है। इनका लश्कर सिर्फ 313 मुखलिस अफराद पर मुश्तमिल होगा, लेकिन उनका ईमान, उनका अज़्म और उनकी बसीरत बद्र के मुजाहिदों की मानंद दुनिया को हैरान कर देगी। ये लश्कर मक्का मुकरमा से निकलेगा और कोफा को अपना मरकज बनाएगा। सोचो नाजरीन, एक तरफ दज्जाल होगा अपनी शैतानी ताकतों, दौलत और फरेब के साथ, और दूसरी तरफ इमाम मेहदी का पाकीज़ा लश्कर होगा जो अदल व हक का परचम थामे खड़ा होगा। हजरत ईसा का नुज़ूल आसमान से जमीन पर, और फिर आता है वो लम्हा जिसकी बाज़गिशत हजारों सालों से सुनाई देती आई है। जब जंग अपने उरूज पर होगी, दज्जाल अपनी ताकत के नशे में बदमस्त होगा और मोमिनीन कड़ी आजमाइश से गुजर रहे होंगे, तब आसमान का दरवाजा खुलेगा। रवायात में आया है कि हजरत ईसा दिमश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनार पर नाजिल होंगे। इनका चेहरा नूर से जगमगा रहा होगा और उनकी पेशानी से ऐसे कतरे झलक रहे होंगे जैसे ताजा पानी के मोती टपक रहे हों। ये मंजर इतना दिलकश होगा कि जमीन की आंखें इश्कबार हो जाएंगी और दिल ईमान से लबरेज हो उठेंगे। सोचिए नाजरीन, आसमान का पर्दा चाक होगा और हजरत ईसा नूर की चादर ओढ़े जमीन पर उतरेंगे। ये वो घड़ी होगी जब ईमान वालों के दिलों में उम्मीद का चिराग रोशन हो जाएगा और हक के परवाने जान लेंगे कि फतह करीब है। मुलाकात इमाम मेहदी और हजरत ईसा। सोचिए नाजरीन, वो घड़ी जिसका इंतजार न सिर्फ आशिकाने मोहम्मद व आले मोहम्मद कर रहे हैं, बल्कि जिसकी खबर आसमानी सहीफों में भी दर्ज है। वो लम्हा जब आसमान की बुलंदियों से हजरत ईसा नुज़ूल फरमाएंगे और जमीन पर इमाम बरहक इमाम मेहदी मौजूद होंगे। अब सवाल ये है, क़ियादत किसके हाथ में होगी? यहाँ तारीख का सबसे हसीन मंजर सामने आता है। इमाम मेहदी अदब व एहतराम के साथ आगे बढ़कर हजरत ईसा को फरमाएंगे, ए रूहुल्लाह, आप तशरीफ लाइए और इस जमात के इमाम बनिए। मगर हजरत ईसा आजिज़ी व इंकिसारी के साथ जवाब देंगे, इमामत आले मोहम्मद का हक है, यह मनसब आप ही को ज़ेब देता है। मैं आपके पीछे नमाज अदा करूंगा ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि क़ियादत का ताज फ़कत अहले बैत के सर पर सजता है। सोचे जरा, एक नबी अपनी ज़बान मुबारक से ऐलान करेगा कि क़ियादत का हक सिर्फ मोहम्मद वो आले मोहम्मद का है। ये मंजर दिलों को झंझोड़ देगा और तारीख की सच्चाई को रोशन तरीन चिराग की मानंद जाहिर कर देगा। आखिरी जंग दज्जाल के खिलाफ मार्का। जब वो घड़ी आएगी तो फजा में एक गैर मामूली खामोशी होगी, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले की होती है। आसमान का नीला सा मध्यम पड़ जाएगा, जमीन जैसे सांस रोक लेगी और हर सांस में तारीख का बोझ महसूस होगा। यही वो घड़ी होगी जब इमाम मेहदी अपने सिपाहियों के साथ मैदान अमल में खड़े होंगे। न वो किसी बड़ी तादाद के बलबूते पर होंगे, न किसी हथियार की जुनूनियत पर, बल्कि उनके पास जो असल ताकत होगी वो उनके दिलों की रोशनी होगी, उनका पक्का ईमान होगा और उनका अल्लाह पर मुकम्मल इत्मीनान होगा। इनके गर्द खड़े वो जवान, वो बूढ़े, वो माएँ, वो बेटे, सबके सब इस एक नीयत के साथ खड़े होंगे कि जुल्म का तख्त हटे और हक का सूरज तलुआ हो। उनके चेहरों पर सादगी होगी, जबानी तराने नहीं मगर नजरें आतिशफशां जैसी साबित कदम होंगी। ये वो लश्कर होगा जिसके कदम सीधे होंगे, हाथ खाली हो सकते हैं मगर इरादे पहाड़ों की मानंद मुस्तहकम होंगे। और सामने दज्जाल वो एक अजब मंजर होगा। उसकी मौजूदगी में फजाएं गूंज उठेंगी, धवासा, रोशनी का फरेब, ऐसे मनाजिर जो अक्ल को चुकरा दे दे। कभी वो जमीन को कान पाने वाली कुव्वत दिखाएगा, हिलते पहाड़, फटते दरिया और झटके जो इंसानों के दिल कान पा दे। कभी वो ऐसी रहमत दिखाएगा जो हकीकत में धोखा हो। जमीन से खजाने फूट पड़ेंगे, आसमान से ऐसी बारिशें बरसाएं जाएंगी जिनमें हैरत हो, मगर ये सब कुछ जाहिरी तमाशा होगा, सुर्ख रुमाल की तरह जो नजर को बहलाए मगर दिल को खाली छोड़ दे। लोग खास तौर पर वो जो ईमान में कमजोर हों
उन मनाजिर में हैरान रह जाएंगे। कुछ आंखें दज्जाल की तरफ खूंची चली आएंगी, कुछ दिल धड़कते हुए उसके सहर में फंस जाएंगे, मगर जो दिल नूरी ईमान से मुनव्वर होंगे वो इन तमाम चालों को फौरन पहचान लेंगे। उनके लिए दज्जाल का जादू शराब की मानंद होगा, दूर से खूबसूरत मगर करीब जाकर खोखला। फिर वो लम्हा आएगा जब मैदान की समत बदल जाएगी। न तख्त व ताज की जरूरियात, न जमीन की दौलत की हिर्स, बल्कि सच्चाई का एक शूर हर तरफ फैल जाएगा। हजरत ईसा खुद मैदान में कदम रखेंगे, वहां की फिजाएं सनवर उठेंगी। एक ऐसा सुकूत जो दिलों को बोल दे। उनकी मौजूदगी में दज्जाल की शैतानी चमक कुछ वक्त के लिए मध्यम पड़ जाएगी, और फिर वही जैसी शान व शौकत, वही जैसी मनाजरें उस एक लम्हे में बेबस हो जाएंगी। रिवायात जो हमें बताती हैं वो ये भी कि दज्जाल का मुकाबला महज तलवार की जंग नहीं होगा, बल्कि हकीकत और फरेब के दरमियान एक खुला इजहार होगा। हजरत ईसा के कदम मजबूत होंगे, उनकी नजरों में अदल का अज़्म होगा, और उनकी तलवार उस सच्चाई की अलामत होगी जो हर झूठ को चीर कर रख दे। जब वो दज्जाल के करीब पहुंचेंगे तो एक ऐसा मंजर होगा कि जैसे मोम आग की पेशानी पर पड़कर नरम पड़ जाता है। दज्जाल की हड्डियों में वो डर घिस जाएगा जो कभी उसने किसी में नहीं देखा था। बाबिलद की सरजमीन, जो कि तारीख और मुकद्दस रवायात की आंख है, वहां वो फैसला किन लम्हा वकू पजीर होगा। दज्जाल जिसने दुनिया को धोखे में मुब्तला रखा, जिसने कल्बों में शक पैदा किया, उसी को अब अपने ही फरेब का शिकार बनकर तारीख के भनूर में डाल दिया जाएगा। उसका गुरूर मिट्टी में मिल जाएगा। वो जो लोगों को अपना खुदा बताता था, खुद उसकी जाल साजी की कीमत अदा करेगा। और फिर जब तलवार का वार होगा, जब दज्जाल का खात्मा होगा, वो मंजर एक बहार जैसा रोशन होगा। न खुशी का शूर बेहुदा होगा, न इंतकाम की तड़प बेकाबू, बल्कि जमीन पर एक नई शान, एक नई उम्मीद की हवा फूटेगी। लोग सांस लेंगे, आंखों से वह सियाह पर्दा उठेगा जो तवील अरसा से उनके सामने साया डालता आया था। इस मार्के का फलसफा यही है, फरेब चाहे कितना ही रोशन क्यों न दिखाए, सच अपनी रोशनी और ताकत से आखिरकार फतेयाब होता है। दज्जाल जैसी हर चाल, हर जादूगरी, हर फराड आखिरी तज्जिए में मुनहदम होकर रह जाती है। और हमें नाजरीन इस सब से सबक लेना है। ईमान की रोशनी को अपनी आंखों में जलाते रखिए, वरना वही फरेब आपको अंधेरे में ले जाएगा। दज्जाल के मरने के बाद नाजरीन जमीन पर सुकून छा जाएगा, जुल्म का निजाम टूटकर बिखर जाएगा, अदल व इंसाफ का बोल बाला होगा, और मोहब्बत व भाईचारा पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इस्लाम का परचम हर कोने में लहराएगा। हजरत ईसा इमाम मेहदी के साथ रहेंगे, शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक फैसले करेंगे, निकाह भी करेंगे और औलाद भी होगी। आखिर में उनका विसाल होगा और वो रसूल अकरम के पहलू में दफन होंगे। नाज़रीन किराम, यह किस्सा सिर्फ दज्जाल और हजरत ईसा की जंग का नहीं, यह अंधेरे और रोशनी की जंग है, यह हक और बातिल की जंग है, यह झूठ और सच्चाई की जंग है। दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं, वह एक सूच है, एक निजाम है जो इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। और इमाम मेहदी और हजरत ईसा वो हस्तियां हैं जो इंसान को रब के करीब कर देते हैं। आखिरी सवाल, आप किसके लश्कर में होंगे? दोस्तों, जब वो वक्त आएगा तो यह सवाल हर एक के सामने होगा, क्या आप दज्जाल के फरेब में आ जाएंगे या आप इमाम मेहदी और हजरत ईसा के परचम तले खड़े होंगे? फैसला आज ही करना है, कल नहीं।